امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے بعد دین کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ جہاں امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے معاویہ نے دین کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ جب زبان کھولنے پر لوگوں کا گلا کاٹ دیا جاتا تھا، نمازیں بدل دی گئی تھی، تب ایک انسان نکلا اور اس نے اپنے خون سے پورے دین کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ جیسے مدینہ کے لوگ جنہوں نے موت کے خوف سے یزید کی بیعت کر لی تھی، جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ حسین نے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی دے دی لیکن یزید کے آگے نہیں جھکا، ان کے اندر کا ایمان زندہ ہو گیا۔ جبکہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ یزید کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر بھی وہ یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بھی یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یزید کے خلاف جنگ کی، لیکن ان کی قسمت اچھی تھی کہ جنگ کے دوران ہی اللہ نے یزید کو دردناک موت دے دی اور اس کے بعد یزید کی فوج مکہ چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ یزید کی موت کے بعد ایک اور ظالم خلیفہ بنا جس کا نام مروان تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر مسلمانوں میں پھیلی تو کافی مسلمانوں نے یزید کی بیعت توڑ دی اور مسلمان یزید کے امام حسین پر کیے گئے ظلم کا بدلہ لینا چاہتے تھے، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے جب کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط بھیجے اور انہیں کہا کہ وہ کوفہ آئیں تاکہ وہ مل کر یزید کے خلاف کھڑے ہو سکے۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط بھیج کر کوفہ بلایا ہے تو یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ بھیج دیا۔ عبید اللہ بن زیاد امام حسین کی طرح کپڑے پہن کر اور اپنے منہ پر کپڑا لپیٹ کر کوفہ میں انٹر ہوا۔ جب کوفہ کے لوگوں نے اسے دیکھا تو انہیں لگا کہ امام حسین علیہ السلام آئے ہیں اور اس طرح عبید اللہ بن زیاد گورنر ہاؤس میں انٹر ہو گیا اور گدی پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے لوگوں سے کہا کہ میرا ساتھ دو ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس نے لوگوں کو جیلوں میں ڈلوا دیا اور انہیں ٹارچر کیا اور جو بھی اس کے خلاف کھڑا ہوا اسے قتل کر دیا۔ جب کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط بھیجے تو امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو کوفہ کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو کوفہ کے ہزاروں لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی۔ جب عبید اللہ بن زیاد کو اس کا پتہ چلا تو اس نے ان قبیلے کے سرداروں کو دھمکی دی جنہوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کی تھی۔ جب شہر میں خوف پھیل گیا تو بہت سے مسلمانوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دی۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ دیکھا تو وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے لیکن انہیں عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے انہیں بری طرح شہید کیا لیکن مسلم بن عقیل نے اپنی شہادت سے پہلے یہ سب بتانے کے لیے ایک خط امام حسین علیہ السلام کو بھیج دیا تھا، لیکن جب تک یہ خط پہنچا تب تک امام حسین علیہ السلام کو یزیدی لشکر نے کربلا میں گھیر لیا تھا۔ کوفہ کے لوگ خوف کا شکار ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے امام حسین علیہ السلام پہنچا۔ تب تک امام حسین علیہ السلام کو یزیدی لشکر نے کربلا میں گھیر لیا تھا۔ کوفہ کے لوگ خوف کا شکار ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفہ کے لوگوں کو اس کا بہت بڑا صدمہ لگا۔ وہ خود کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا قصوروار ٹھہرانے لگے۔ کوفہ سے حضرت سلیمان بن سرد جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور انہوں نے امام علی علیہ السلام کا بھی ساتھ دیا تھا، انہوں نے کوفہ کے دوسرے بڑے لیڈرز کے ساتھ مل کر ایک فورس بنانا شروع کر دی جسے توابون کہا جاتا ہے۔ ان کا مقصد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ لینا تھا اور اس طرح ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے فوجیوں اور کمانڈرز کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اصولوں پر حکومت بنانا چاہتے تھے جو کہ امام حسین علیہ السلام کرنے نکلے تھے۔ اس کے بعد یہ لوگ کوفہ کے نزدیک نخیلا نامی ایک جگہ پر جمع ہونے لگے، لیکن ان کی تعداد کم تھی، ان کی ٹوٹل تعداد 4 سے 5 ہزار تھی۔ ان لوگوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی قبر پر قسم کھائی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ لے کر رہیں گے اور اس کے بعد وہ سیریا کی طرف روانہ ہو گئے یزید
की फौज से लड़ने के लिए। इनका यजीद की फौज के साथ ऐन अल-वर्दा नामी जगह पर सामना हुआ, लेकिन क्योंकि ये तादाद में बहुत कम थे, इस वजह से यजीद की फौज ने इन्हें हरा दिया और इनके लीडर सुलेमान बिन सुर्द को भी शहीद कर दिया। तवाबून की इस हार से दूसरे मुसलमानों का जज्बा और ज्यादा बढ़ गया और लोग और ज्यादा यजीद के खिलाफ खड़े होने लगे। इनमें से एक इंसान था जिसका नाम मुख्तार सक़फ़ी था। मुख्तार सक़फ़ी अहले बैत का बहुत बड़ा सपोर्टर था। इसने इमाम अली और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौरे खिलाफत में इनका साथ दिया था, लेकिन बदकिस्मती से वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दे सका, क्योंकि उस वक्त उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इसे यजीद के ऑर्डर पर जेल में डाल दिया था। लेकिन यजीद की मौत के बाद इसे जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद मुख्तार सक़फ़ी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लेने के लिए अपनी फौज तैयार करना शुरू कर दी। इसने कूफा में मवाली और शिया को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। मुख्तार सक़फ़ी खुद को इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया का सक्सेसर कहता था, जिसकी वजह से कूफा के बहुत से लोग इसके साथ जुड़ने लगे और इस तरह मुख्तार ने एक फौज तैयार कर ली जिसका मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों से बदला लेना था। मुख्तार ने अपनी फौज के साथ कूफा पर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। मुख्तार अपनी फौज के साथ दरियाए खाजर के पास पहुंच गया। इसकी फौज का कमांडर इब्राहिम बिन अश्तर था, जो हजरत मालिक अश्तर के बेटे थे। मालिक अश्तर इमाम अली अलैहिस्सलाम के बहुत करीबी साथी और कमांडर थे। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने भी एक बड़ी फौज मुख्तार सक़फ़ी के खिलाफ भेजी, जिसके पास एडवांस असला था और तादाद में भी वो मुख्तार की फौज से काफी ज्यादा थे। इसके बावजूद भी मुख्तार की फौज बहादुरी के साथ लड़ी और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को शिकस्त दे दी। इसके बाद मुख्तार सक़फ़ी ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद और इसके साथ और कई लोगों को कत्ल किया जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों में शामिल थे, जैसे कि शिम्र और अमर बिन साद। इस जंग के बाद मुख्तार ने कूफा को अपने कंट्रोल में ले लिया। दूसरी तरफ मक्का में अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने खुद को खलीफा डिक्लेयर कर दिया था और इसकी हुकूमत भी इराक और कूफा जैसे इलाकों तक फैल रही थी। मुख्तार को जब इसका पता चला तो इसने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के साथ मक्का में अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने खुद को खलीफा डिक्लेयर कर दिया था और इसकी हुकूमत भी इराक और कूफा जैसे इलाकों तक फैल रही थी। मुख्तार को जब इसका पता चला तो इसने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की और इसे अपनी वफादारी का यकीन दिलाया, लेकिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को अपनी हुकूमत खतरे में नजर आ रही थी। इसने मुख्तार के साथ डील नहीं की, बल्कि इसने उल्टा अपने भाई मुसब बिन ज़ुबैर को एक फौज के साथ कूफा भेजा ताकि मुख्तार को खत्म कर सके। इसके बाद मुख्तार और मुसब की फौज के दरमियान जंग हुई और बदकिस्मती से मुख्तार ये जंग हार गया और शहीद हो गया। इस जंग में मुख्तार के बहुत से साथी भी मारे गए और इस तरह मुख्तार की लीडरशिप का एंड हो गया। इससे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की हुकूमत काफी स्ट्रांग हो चुकी थी, क्योंकि अब कूफा भी इसके अंडर आ चुका था। ये देखकर मरवान ने सबसे पहले सीरिया को प्रोटेक्ट किया ताकि कहीं इस पर भी अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कब्जा न कर ले। फिर इसके बाद इसने इराक और मक्का को अपने अंडर लाने की कोशिश की। इसने अपने एक जालिम जनरल हजाज बिन यूसुफ को फौज के साथ इराक भेजा, जहां अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर का भाई मुसब बिन ज़ुबैर था। हज्जाज और मुसब बिन ज़ुबैर के दरमियान मस्कन नामी जगह पर जंग हुई। इस जंग में हज्जाज ने मुसब बिन ज़ुबैर को कत्ल कर दिया, जिससे इराक दोबारा मरवान के अंडर आ गया। इराक का कंट्रोल खोने के बाद अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की पोजीशन काफी कमजोर हो गई, जिसके बाद इसका कंट्रोल सिर्फ हिजाज तक रह गया। अब मरवान ने दोबारा हज्जाज बिन यूसुफ को फौज के साथ मक्का की तरफ भेजा, जहां अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर मौजूद था। हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का को सीज कर लिया और पिछली बार की तरह फिर से कैटapults यूज करके पत्थर फेंके। इन पत्थरों में से एक पत्थर जाकर काबा को लगा, जिससे काबा को नुकसान पहुंचा। लेकिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने फिर भी हथियार नहीं डाले। कई महीनों तक मक्का को सीज करने के बाद अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के साथ सिर्फ कुछ लोग ही रह गए। आखिरकार अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर काबा में छुप गया, जहां उसे कत्ल कर दिया गया। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की मौत के बाद मक्का फिर से इस जालिम मरवान के कंट्रोल में आ गया।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद न होते तो मुसलमान कभी भी यजीद के खिलाफ खड़े न होते। जैसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले कोई खिलाफ नहीं खड़ा हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत के जरिए वो कर दिखाया जो लोग जिंदा रहकर भी नहीं कर सके। आज तक दुनिया में जितने भी बड़े बादशाह आए, जैसा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज खान और रेमेसीज, इन सब में एक बात कॉमन थी। जैसे ही इनकी मौत हुई, इनकी सल्तनत खत्म हो गई, इनकी मौत ही उनकी हार थी। लेकिन हुसैन दुनिया का वाहिद ऐसा इंसान है जिसकी मौत उसकी जीत थी। दुनिया में कितने बादशाह आए और गए जिनके पास दौलत, शोहरत और ताकत थी, लेकिन आज उन्हें कोई याद नहीं करता। लेकिन वही एक ऐसा इंसान जो सादा कपड़े पहनता था, जिसके पास कोई दौलत नहीं थी, अकेला निकला और आज करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा हो गया। इसे कहते हैं शहादत। यही वजह है कि आज दुनिया के डिफरेंट रिलीजन्स के लोग भी इमाम हुसैन की तारीफ करते हैं। जैसा कि महात्मा गांधी, जिनका कहना था कि मेरा अकीदा है कि इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि हुसैन की अजीम कुर्बानी से फैला है। मैंने हुसैन से सीखा कि मजलूम होकर जीत कैसे हासिल की जाती है। अगर हिंदुस्तान एक कामयाब मुल्क बनना चाहता है तो इसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तरीकों पर चलना चाहिए। अगर मेरे पास हुसैन के 72 सिपाहियों जैसी फौज होती तो मैं 24 घंटों में हिंदुस्तान को आजाद करवा लेता। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इनका कहना था कि इमाम हुसैन की कुर्बानी पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल है। इसी तरह स्वामी शंकर आचार्य ने कहा था, हुसैन की कुर्बानी ने इस्लाम को जिंदा रखा, वरना इस दुनिया में इस्लाम का नाम लेने वाला कोई न बचता। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र, जो कि भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था, इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक मुल्क या कौम तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये तमाम इंसानों के लिए बड़ी हैसियत रखती है। आप देख सकते हो कि हिंदू भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से कितने मुतासिर थे। इसी तरह हिंदुओं में हुसैनी ब्राह्मण भी पाए जाते हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं और इनके नाम पर मातम भी करते हैं। इनका मानना है कि इनके एंसेस्टर राहब दत्त अपने बेटों के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों में शामिल थे। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि इसके अलावा कई फेमस राइटर्स और हिस्टोरियंस ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ की है। थॉमस कार्लाइल, सर विलियम म्यूर, एडवर्ड गिबन, पीटर चेल्कोव्स्की, वॉशिंगटन इरविंग और चार्ल्स डिकेंस जैसे लोग, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने भी इमाम हुसैन की तारीफें की। आज वहाबियों के टुकड़ों पर पलने वाले मौलवी कहते हैं कि हुसैन ने क्या ही किया था। ये वीडियो इनके मुंह पर तमाचा है।